بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, خبر یہ آئی ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتایا ہے کہ پاکستان خاص طور پر پنجاب کی سیاحت پر جو ہے وہ 28 ارب روپے خرچ ہونے جا رہے ہیں. ایسے پلانز بنائے جا رہے ہیں, ایسی ایپس متعارف کرائی جا رہی ہیں, ایسے سیاحتی مقامات بنائے جا رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو سہولت ملے گی کہ وہ جائیں اور وہاں پر انجوائے کریں. جاوید اقبال صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا یہ پروجیکٹ ہے, کتنا بینیفیشل ہونے جا رہا ہے, کب بنے گا, کتنی سہولت ملے گی, اور پہلے سے جو ناردرن ایریاز موجود ہیں وہاں پر سرکار کے کتنے کام ہیں؟ ابھی تک سڑکیں نہیں بنی وہاں پر, میں تو سخت نالا ہوں. سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جاوید صاحب بسم اللہ کیجئے, کیا کہنا چاہیں گے سیاحت کی بحالی پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت کچھ کہہ دیا. دیکھیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, 28 ارب روپے کا آپ بتا رہی ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب اور پنجاب حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے اور سیاحتی لوگوں کو پنجاب میں لانے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں. لیکن میں تو پہلے حساب لوں گا اس گورنمنٹ سے, پنجاب حکومت سے, 1 دہائی کا. انہوں نے آپ سے حساب لے لیا ہے تو لینے کے دینے پر دیکھیں میں تو پروگرام کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ پہلے حساب لوں گا, پھر آپ کے سوالوں کا جواب لوں گا. پنجاب حکومت سے سوال کروں گا, سوال کرنا میرا رائٹ ہے اور آپ کا بھی رائٹ ہے. یہ قصہ 1 دہائی کا ہے پنجاب میں کہ پالیسی در پالیسی, قانون در قانون بنتے رہے اور اب تک 1 خرب روپیہ 1 دہائی کے دوران, پوری 1 دہائی کے دوران, یعنی کہ 5 سے 7 پالیسیاں بنی پنجاب کے اندر. اس جو سیاحت کا مردہ گھوڑا تھا یا مردہ ہاتھی تھا, ہر دور میں اس پہ جان ڈالنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ مردہ گھوڑا ہی رہا. اور سیاحتوں نے یا سیاحوں نے یہاں پہ ٹورزم ڈیولپ نہ ہو سکی. وجہ یہ تھی کہ نکمی حکومتیں, نکمی پالیسیاں, نکارہ پالیسیاں, سبز باغ, جنہوں نے جناب والا پنجاب کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ تھا یا ٹورزم پنجاب تھی, اس کا خانہ خراب کر دیا. اچھا جاوید صاحب, اب میں آغاز کرنے لگا ہوں, آپ مجھے بولنے دیں, اتھارٹی بھی بنا دی ہے, آپ مجھے بولنے دیں. آپ پہلی بار پنجاب ٹورزم اتھارٹی بھی بنا دی ہے کہ اب نہیں چھوڑنا. یہ پہلی بار نہیں ہے. اچھا, یہ 5 پالیسیاں بنی ہیں. نہیں سر, 5 پالیسیاں. لوگ یہ تھے اتھارٹی ایک الگ سے. اتھارٹی اور ڈپارٹمنٹ میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کو خود مختاری دے رہے ہو. وہ انہوں نے جو پالیسیاں بنائی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں لائیں گے. یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ان کو کرنا بڑا آتا ہے اور میں اب نہیں کرنے دوں گا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2017 میں پہلی جو پروونشل ٹورزم پالیسی بنی پنجاب کے اندر کہ ہم نے جناب پنجاب کو اتنا رنگین کرنا ہے, اتنا خوبصورت کرنا ہے کہ 19 پوائنٹس جو تھے, مقامات جو تھے ٹورزم کے, کہ وہاں فارنر آئیں گے اور وہاں جو ہے اتنا موج میلہ ہوگا, اتنی خوبصورت جگہیں بنیں گی اور ٹورزم جو ہے وہ قربان ہو جائیں گے. ٹورزم تو جو ہے جو سیاحتی لوگ تھے وہ تو نہ آئے. وجہ کیا تھی؟ یہ پالیسی ناکام رہی. سال تک مری جیسا ٹورسٹ کیس اور لوگ اپنی گاڑیوں میں مر جائیں. اس کے بعد جب یہ پالیسی دم توڑ گئی, اس میں جو بجٹ رکھا گیا تھا وہ 200 ملین کے قریب تھا, وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اب اس کے بعد ایک نئی حکومت آئی 2019 میں, ایک پنجاب ٹورزم پالیسی 2019 بنائی گئی, جس پر انہوں نے ظالموں نے 105 ارب روپے مختص کیے. مختلف سیاحتی منصوبے, 14 سیاحتی منصوبے بنائے گئے. پہلے اس پہ تجویز دی گئی کہ 400 ملین کا فنڈ بہت زیادہ ہے, وہ رکھیں گے اور پنجاب کے اندر جو 23 مقامات ہیں مری سمیت, پٹیاٹا سمیت, ان کو ہم ڈیولپ کریں گے. ہم اس میں جیپ ریلی جو ہے ریگستان میں چلائیں گے. ڈی جی خان کے اندر ہوا کیا کہ 105 ارب روپیہ جو تھا وہ کس نے کیا سر؟ وہ اس وقت کی حکومت نے, پی ٹی آئی کی تھی نا سر. اب یہ سارا کچھ تو آپ مریم حکومت کے کھاتے میں مت ڈالیں. یہ سارے ذمہ دار ہیں اور سارے ان نہلیوں میں شامل ہیں. موج میلہ کرنے میں وہ پی ٹی آئی ہو, وہ نون لیگ ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو. آج تک 5 پالیسیاں بنی ہیں. ابھی 2019 تک پہنچا ہوں. 105 ارب روپے عمران خان کی حکومت نے مختص کیے. موج میلہ ہوا, بس سیر و تفریح ہوئی اور ٹی اے ڈی اے کے نام پر اور جناب ریت کو بہتر کرنے کے نام پر 105 ارب روپیہ قوم کا غرق کر دیا. اب پھر اس کے بعد آتا ہے 2019 سے 23 کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنایا گیا محکمہ ٹورزم نے. اس میں
टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट 21 में वो आ गई, वो 2020 से 3 साल मंसूबा बनाया गया ना। अब हैरान रह जाएंगी कि इससे वर्ल्ड इस मंसूबे को आबाद करने के लिए प्रोग्राम था पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट पंजाब। इसको डेवलप करने के लिए जालमों ने कितने पैसे लिए? 60 अरब रुपया इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड बैंक ने। इन्होंने शीशे में तारा उसको, और वर्ल्ड बैंक के जो गोरख धंधे इससे भी बड़े हैं उनको इन्होंने लिया, और इन्होंने जनाब 32 पॉइंट जो थे उनको रेज किया कि हमने मरी को आबाद करना है। वही पेट्राटा, मरी और वही पुराने मंसूबे। और इसमें एक मंसूबा इन्होंने नया शामिल किया। अच्छा। जल्लो में शांगा मांगा जी, शांगा जल्लो इधर है अपना लाहौर, जल्लो लाहौर। इसके जो एक ग्राउंड बनानी थी, एक पार्क बनाना था, उसकी 4 दीवारी बनाकर और 4 झूले लगाकर कौम का कितना पैसा मकरूज कर दिया गया वर्ल्ड बैंक के तावन से? 60 अरब रुपया। और उस पॉलिसी का भी आज तक पता नहीं चला। अच्छा, इसके बाद 2025 में एक और पॉलिसी आई सही, जिसके तहत जनाबे वाला 70 अरब रुपया मुख्तस हुआ आलमी इदारों की मदद से। सही। और उसके तहत जो हमारे अजायब घर लाहौर है इसको डेवलप करना था। इसके अलावा जनाब सियाहती नए मकामात जिनकी तादाद 213 थी वो डेवलप होने थे। 200 बंदा टूरिज्म फोर्स का रखना था जिसके लिए 200 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। सही। अच्छा, 100 मिलियन रुपए इनमें से निकाल कर रिजोर्ट डेवलप करने थे, प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना था। मैडम मनीर, 1 टके का काम नहीं हुआ। सही। अगर मैं माजी को सामने रखकर माजी में जो अरबों रुपए इस पे जाया हुए, कौम का वक्त जाया हुआ, महकमा जो था वो प्रोजेक्ट बनाता रहा, कागजों में पैसे खाते रहे, और पंजाब में टूरिज्म कहीं नजर नहीं आती, डेवलप नहीं हुई, कोई सियाह आता नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे हालात होंगे तो बेहतर होंगे। अब आप आते हैं मौजूदा हुकूमत मरियम नवाज साहबा की हुकूमत की तरफ। 28 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 28 अरब रुपया मुख्तस हो गया, अथॉरिटी बनने जा रही है। इससे पहले जो पंजाब के अंदर 2 सालों में 55 अथॉरिटीज बन चुकी हैं। साफ पानी अथॉरिटी, उसके बाद सुथरा पंजाब अथॉरिटी, उसके बाद हेल्थ अथॉरिटी, उसके बाद माहौलियात अथॉरिटी, उसके बाद हेल्थ अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी। किस किस का रोना रोएंगी आप? इससे पहले जितनी अथॉरिटी बनी है उनके रिजल्ट क्या है? 0। आप सुथरा पंजाब को देख लें, आलमी चर्चे हुए, और उसके बाद उसकी हालत देख लें कि लाहौर जैसा जो शिमाली लाहौर है या जनूबी लाहौर है, वहाँ गंदगी के पहाड़ लगे हुए हैं। और जावेद साहब प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि सुथरा पंजाब सही जा रहा है, उसकी तारीफ हो रही है। जी, तारीफ हो रही है, लेकिन प्रोड्यूसर साहब को कहें कि मेरा चैलेंज है, आप एक सिद्रा मनीर की सरबराही में एक टीम बनाएं, मेरे साथ सुबह निकलें। 5 बजे 6 बजे हम निकलते हैं। मैं आपको सुथरा पंजाब इन लाहौर में दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको गंदगी और तफन और कूड़े के ढेर और गलियों में इतना कूड़ा जिसके लिए लोग कहेंगे कि 8-8 दिन कूड़ा पड़ा रहता है, और कूड़ा उठाने के लिए हवा का इंतजार, आंधी का इंतजार करना पड़ता है, कुदरती आंधी का, कि कब आंधी आए और कब वो कूड़ा जो है ना वहां से चला जाए। सही। अगर मैं आपको ना दिखा सकूं तो फिर आइंदा पीर को प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम आपसे दरखास्त करके सुथरा पंजाब के गीत गाएंगे, उनके जनाब शेरे गाएंगे, उनको जनाब 21 तोपों की सलामी पेश करेंगे, और प्रोड्यूसर साहब को भी करेंगे। अब आते हैं इनकी तरफ। सयाहत की तरफ आ जाएं। अल्लाह करे ये 28 अरब रुपया जो है जो अथॉरिटी बनने जा रही है, ये कोई मफीद हो, लेकिन अगर मैं माजी पे नजर दड़ाऊं, मुस्लिम लीग नून की जो कई ऐसी पॉलिसियां हैं जो मुर्दा घोड़ा साबित हुई हैं, सब्ज बाग साबित हुई हैं, अगर इनमें से जो पिछली पॉलिसियां बनी है उसका ही तसलसल है। नाम इन्होंने अथॉरिटी दे दिया, पहले प्रोजेक्ट था, अब इन्होंने अथॉरिटी दे दिया है। अब अथॉरिटी का एक सीईओ होगा, एक एमडी होगा, फौज जफर मौज होगी। उसी तरह जिस तरह पंजाब जो सुथरा पंजाब है उनके इन्होंने हेड ऑफिस बनाए हैं, उसी तरह होगा जिसका पीरा के एक पहले पुलिस स्टेशन था, उसके मुकाबले में एक और पुलिस स्टेशन बना दिया। अब अल्लाह करे मरियम और औरंगजेब साहबा का ये डिपार्टमेंट है, अल्लाह करे उन्हें जहांगीर
राजा जैसा को सेक्रेटरी मिल जाए जो उनकी किस्मत संवार दे, जो उनकी इज्जत में इजाफा कर दे, जो पंजाब में टूरिज्म डेवलप कर दे, जो पंजाब में टूरिज्म फोर्स, अब देखिए जितने पार्क हैं हमारे खंडरात बने हुए हैं और जितनी हमारी टूरिज्म की पॉइंट्स हैं वो सारी खंडर है, वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी है। अगर कोई सयाह चला भी जाता है तो वो जो पूंडनमा वहाँ पे पिछले दिन शांगा मांगा में क्या हुआ कि बच्चियाँ कौम की गई हुई थी, वहाँ सिक्योरिटी नाम की चीज़ कोई नहीं थी, मस्टंडे जो हैं वो बच्चियों के पीछे लग गए और वहाँ जो कुछ हुआ तौबा तौबा करती है वो वीडियोस देखकर। अब ये सारी नीयत पर है कि अगर पंजाब हुकूमत की वाकई नीयत कुछ करने की है फिर तो ये जनाब वाला आगे बढ़ेगा ये सफ़र। अगर नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब में क्या पूरे मुल्क में मैडम मनीर इस वक्त टूरिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। टूरिज्म किस्सा पुरानिया हो चुका है। आप KPK में चले जाएं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है। इनके जो हमारे शुमाली इलाकाजात हैं, कश्मीर है, वहाँ तो दीवानी थी जो इंटरनेशनल लोग हैं। इन हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से, इनकी सब्ज़ बाग दिखाने की वजह से टूरिज्म का इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जनाजा निकाल दिया। तो कोई मुंह उठाने के लिए, कोई यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। सही। अगर ये डेवलप कर दें तो पाकिस्तान का मेरा ख्याल कर्जा जो है इतनी सियाहती दुनिया आएगी कि 5 सालों के अंदर उतर जाएगा। सही, लेकिन नीयत की बात है। अच्छा चलें जी सर, ये हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना वो आपकी बात ले गए हैं दिल पे ले गए। उन्होंने सारी डिटेल्स लिखवाई हैं। उन्होंने कहा है जी हमारा जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम था मरियम साहिबा का जी, बर्मिंघम ने उसको रहनुमाई के तौर पर लिया है, उसको कॉपी किया है। बर्तानिया का शहर है बर्मिंघम, वहाँ पर उन्होंने कहा जी इस मॉडल, ये बड़ा बेहतरीन मॉडल है, इससे रहनुमाई लेकर हम भी इसको कॉपी करेंगे और मिलता जुलता मॉडल बनाएंगे। BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, BBC ने इसको रिपोर्ट किया है और तारीफ की है और ये भी कहा है कि इसको फॉलो किया जा सकता है, ये काबिल तकलीद है। जापानी इदारा है जी निकी एशिया, उसकी जानिब से तारीफ की गई। फिर उसके बाद गल्फ न्यूज़ ने इसको कहा है कि ये एक मजबूत सिस्टम है, बेहतरीन निज़ाम बना दिया गया है। उसके बाद ब्राज़ील में एक माहौलियाती कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी इसकी तारीफ हुई, जिसमें ये मॉडल पेश किया गया और उसमें बताया गया कि ये बेहतरीन है। और जो मालियाती बैंक है उसने भी तारीफ की। और ये प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि अब आप बताएं, इतना कुछ पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, जावेद इकबाल साहब को क्या मसला है? जी प्रोड्यूसर साहब से कहें, पंजाब हमने आपको मरियम औरंगजेब साहबा को भी पीर मानेंगे, ठीक, और रहबर मांगेंगे, और हम बाबर साहब दीन जो सुथरा पंजाब के DG हैं उनको भी पीर मानेंगे। सही। उनका शकरगढ़ से आगे मरियाल है, उनका गांव है, वो इतना खंडर है और वहां पे इतनी गंदगी है, वो भी उठानी, उनको साफ करनी चाहिए मरियाल की गंदगी। अब ये जो डॉक्यूमेंट्रीज आप कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, हाँ। मजा तो फिर है कि वहां के जो अदारे हैं, हाँ। जो सफारत खाने हैं वहां के या पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो कोई रिटर्न पाकिस्तान की हुकूमत को लिखें। सर क्यों लिखे रिटर्न? मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ मैडम, मैं अर्ज करता हूँ, आप गर्म ना हो। अच्छा, वो जब तनकीद करते हैं, मैं मान लिया, हमारी खराबियां मैं मान लिया, तो आप मैंने आपकी और आपके प्रोड्यूसर की बात मान ली। मैं नहीं जाता, ना ब्राजील में जाता हूँ, ना मैं बर्तानिया में जाता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ। सुबह कैमरे निकालें, ठीक, 6 बजे मैं अपनी नींद खराब करूंगा, हाँ। मैं पेट्रोल अपना इस्तेमाल करूंगा, सही। गाड़ी अपनी इस्तेमाल करूंगा, आपको नाश्ता आपके प्रोड्यूसर को भी करवाऊंगा, आपको भी करवाऊंगा। आप निकले, आप बर्तानिया ना जाएं, आप सुबह मैं आपको लेके चलता हूं लाहौर के अंदर, गली कूचों के अंदर। अगर जनाबे वाला मेरी बात गलत निकले, मैं बर्तानिया की नहीं बात कर रहा, मैं पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर की बात कर रहा हूँ कि आप कैमरे लें, आप निकले। अगर मेरी बात गलत हो जाए, गंदगी के पहाड़ आपको नजर ना आए, हाँ। तो मैं जनाबे वाला परसों बाबर साहब दीन को भी सलूट करूंगा, आपको भी, आपके प्रोड्यूसर को भी, आपके CEO को भी, और मैं माफी भी मांगूंगा प्रोग्राम में कि मैंने गलत कहा। अच्छा जावेद इकबाल साहब, ये सारी जो डिटेल सामने आई है ना, ये आई थी उस वक्त जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ। ये तो पुरानी बात है, जब ये शुरू हुआ था तब भी इतनी खराबियां थी, या जब ये शुरू हुआ था तो ठीक था? अब खराबियां हो गई हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसको उसका तसलसल काम नहीं रखते, मेंटेनेंस नहीं होती है। आपने सिफारशी बंदों की लाइनें लगा दी है, आपने सिफारशी बंदों की जो वर्कर्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों की, उनको आपने भर्ती कर दिया है, वो आंखें दिखाते हैं,
वो गंदगी नहीं उठाते। तो शुरू में ये प्रोग्राम बड़ा कमाल था। ठीक, चलिए जी, जावेद साहब मानते हैं और मसला समझ आ गया है। जो प्रोड्यूसर साहब ने ये सारा कुछ बताया है, यकीनी तौर पर ये सब कुछ हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट कोई शुरू होता है तो हमें नजर आता है उस पर काम भी होता है, सारे इदारे एक्टिव हो जाते हैं। ऑब्वियसली वज़ीर आला साहिबा भी खास नजर रखती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है, वो कोई भी मंसूबा हो, वो कोई हेल्थ प्रोजेक्ट हो, वो कोई एजुकेशन का प्रोजेक्ट हो, वो सफाई प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, हमारे ये मिजाज बन चुके हैं कि एक बार तो हम चीज़ चमका के दिखा देते हैं, उसके बाद उसका क्या बनता है मेंटेनेंस करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो वाला मामला शुरू हो जाता है जिसकी निशानदही जावेद इकबाल साहब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कल के प्रोग्राम में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।